Hello, everybody. Am I audible? Yes, sir, Yes, you sir. are very much audible. Vaishnavi, go ahead and start. Yes, Priya. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, become more, and you are a leader. Today, we have one such personality with us. I, Vaishnavi Sharma, on behalf of our family, Ramjas UPSC Wing, am delighted to give a warm welcome to our esteemed guest speaker, Mr. Pulkit Khare, sir. He secured the prestigious All India Rank 5 in UPSC exam 2010. He is currently serving as district magistrate in Pilbhit. Essays for Civil Services, his book is a complete resource for CSC applicants. He earned his bachelor's degree in engineering from Delhi College of Engineers. He joined the IRS, Customs and Central Exercise and IPS as a result of his past exam selection. He has contributed a number of national magazines and newspaper with articles. Moreover, Sir stayed in limelight for his courageous step of suspending 3 officers and saved the farmers from being fleeced by private traders. Also, I'm feeling immensely proud to announce that Khare sir was honored with Elite's Water Innovation Award for his Belatali project in Hardoi and has been the best suited example for Gandhiji's quote, be the change that you want to see in the world. So without delaying, I would like to welcome our honorable guest, Mr. Pulkit Khare sir. Over to you, sir. Thank you so much, Vaishnavi, for kind words. Thank you, Meenakshi ji, who introduced me to this UPSC wing and invited me to this forum. And thank you to the entire Ramjas team. And I got to know that this fest called Utsav is going on. And I'm delighted to be a part of it and part of this session. And I hand it over to Vaishnavi now. How do we take it forward? Thank you, sir, for your kind words. So I would just request the audience to write some of the questions that they want to ask to sir, and we'll take them one by one. Meanwhile, sir, I want to ask that in your book, Essays for Civil Services, you mentioned about the importance of regulated brainstorming and have also shed light upon the 7 domains of brainstorming. It will be really great to hear more about that from you, as it is an integral part of essay writing. Before I go into the details of that, first I would like to say that I'm equally comfortable in English or Hindi. So the questions can flow in any of the language. That should not be the barrier. It was a long back when I wrote this book, probably at the time when I cleared the exam. That was way back in 2010. And things and topics of relevance definitely change over a period of time. So after I got this rank, I already had this collection of essays with me, which I used to write during the preparation. So preparation ke time pe, I had this schedule where every Sunday, 3 to 6, I would sit down and write an essay just to prepare myself for the essay paper of the UPSC. Because in the UPSC, in the examination hall, you have a very limited time in which you have to think about a new topic. You have to form your ideas on that topic. And not only form the ideas randomly, but you have to present them in a coherent manner. As the time is very limited, you have to train yourself. How will you do this presentation in that limited time? So my advice always to the aspirants is that we must practice a lot. Just like we do practice for the answer writing, essay has a significant marks for you up for grabs. And if you do more practice, you will be more perfect in that domain, perfect in correct thinking and correct presentation in that limited time period. So when I was preparing, I had this Sunday afternoon schedule where 3 to 6, I would every time write down an essay, and I had a register. उसी register में मैं नए-नए topics के ऊपर essay लिखता रहता था. And when I got selected, eventually वो register मेरे पास था. And then my mom gave me this suggestion, since you have this good collection of essays already with you, why don't you publish it in the form of a book?
and it can be useful for the students, for the aspirants, and not only the essays but also how you go about writing the essays. तो वहाँ से उस बुक का थॉट आया था, उस रजिस्टर से, और जो मेरी मॉम की एडवाइस थी, एंड फिर हम लोगों ने उसको एक बुक के फॉर्म में डेवलप करा. एंड बुक में एसेज से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को ऐसे कैसे लिखना है, एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसेज के टॉपिक हर साल बदलते रहेंगे. बट आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो अप्रोच है, वो आप सेट कर सकते हैं, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ले सकें. तो अभी जो आप वैष्णवी बात कह रहे थे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, मेरा मानना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऐसे राइटिंग का. जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, हमें उसमें कुछ चॉइसेस होती हैं जनरली एसेज की, कि हम इनमें से कौन सा ऐसे कंफर्टेबल है लिखने में. तो पहला हमें तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस एरिया में कंफर्टेबल हैं. कई बार कुछ टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट से मिलते जुलते होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सोशोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, या आप फिलोसफी बैकग्राउंड से हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड से हैं, एंड वो टॉपिक उसी डोमेन का है. आई वुड सजेस्ट कि आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जाना चाहिए. अगर उस डोमेन का कोई टॉपिक आपको मिल रहा है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको उस एरिया में उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता होगा. ये हो सकता है कि कोई भी टॉपिक आपके क्लियर कट डोमेन का ना हो, आपके सब्जेक्ट का ना हो, और सभी जनरल टॉपिक्स हों. तो वंस यू गेट दैट पेपर, क्वेश्चन पेपर, एंड द चॉइसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू, आई वुड से कुछ टॉपिक्स तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होंगे. जो एक दो टॉपिक्स बचेंगे कि हाँ, इनमें इन दोनों पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो उसमें आप थोड़ा 2 मिनट सोचिए कि किसमें आपके पास मैटर ज़्यादा है लिखने के लिए. आपने उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा है, हो सकता है एडिटोरियल्स में पढ़ा हो, किसी मैगजीन में पढ़ा हो उस टॉपिक के बारे में, या अपनी कन्वेंशनल बुक्स में पढ़ा हो. एक बार ये टॉपिक डिसाइड हो गया, देन जो मैं कहता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस शुरू होता है. जनरली हम लोग लास्ट शीट ऑफ द आंसर शीट पे जाते थे, एंड जैसा मैंने बुक में भी बताया है, यू राइट डाउन द टॉपिक एज सच इन द मिडिल ऑफ द शीट. उस आंसर शीट के बीच में आप उस टॉपिक को लिखिए और आप उसको सर्कल कर दीजिए, एंड देन वहां से आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग के, जैसे मैंने कहा, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट्स होते हैं, आप कहाँ से शुरू करेंगे. वन इज, यू कैन थिंक अबाउट ऑल द डब्ल्यूज, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ. सो इस टॉपिक के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस, आप खुद पूछिए, और उसका वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्मॉल आंसर्स, नॉट बिग पॉइंट्स, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, बट स्मॉल में आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर सकते हैं कि इस टॉपिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ, व्हाट इज द रेलिवेंस टुडे, व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट. तो इस तरह से एक एस्पेक्ट हमें मिल गया. उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने वहीं पे शॉर्ट में जॉट डाउन कर लिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो दूसरा पार्ट होगा, वो उस टॉपिक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे होगा, कि उस टॉपिक को लेके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उस टॉपिक की रेलिवेंस अभी क्या है. क्योंकि हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, उसके प्रोज या कॉन्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग शॉर्ट में जॉट डाउन कर सकते हैं वहीं पे. फिर उसके कई एस्पेक्ट्स आते हैं. जो थर्ड पॉइंट होता है कि उस टॉपिक का सोशल एस्पेक्ट क्या है, क्या उस टॉपिक का कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, कोई कल्चरल एस्पेक्ट है. क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम सोसाइटी से उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट कर रहा होगा. जेंडर पे उसका क्या इम्पैक्ट है, सोशल इविल्स पे कुछ उसका इम्पैक्ट है या नहीं है. तो अगेन इन सबको हम लोग पॉइंट्स में रिलेटेड टू दैट टॉपिक वहीं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट में लिख लेते हैं. मेरा मानना है कि अगर आपने हाफ एन आवर अच्छे से उस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म करके अपनी वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट तैयार कर ली, तो देन योर राइटिंग बिकम्स वेरी इजी. आप नेक्स्ट 1 आवर या 1.5 आवर्स, जितना भी आपके पास टाइम है, उसमें जब आप लिखते हैं, सो यू नो आपको किन पॉइंट्स पे लिखना है, और आपका एक फ्लो बेटर आ जाता है. अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं करी है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो हो सकता है आप सारे पॉइंट्स तो लिखें, बट उनका फ्लो अच्छा नहीं होगा. एंड किसी भी आंसर राइटिंग में फ्लो इज वेरी क्रिटिकल. जब कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ रहा है, तो उसको एक फ्लो दिखना चाहिए कि आप लॉजिकली एक पॉइंट से दूसरे पे आप जंप करें, उसमें रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए. तो दैट हेल्प्स, यू नो, लाइक वंस यू ब्रेनस्टॉर्म, आपका फ्लो एक बेटर आ जाएगा, एंड आप
अपनी उसी ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट से पॉइंट्स उठा के उनको पैराज में कन्वर्ट करते हुए टुवर्ड्स द एंड जा सकते हैं. So this is in nutshell a basic about how to approach, how to go about doing brainstorming and then converting it into a full-fledged essay. Thank you, sir. Sir, so my next question is about something about your own life. That we would love to know about the hardships you faced in Belatali project in Hardoi. But sir, before that, I would just say that once I heard Modi ji saying that it depends upon you, that whether you changes the time or time changes with you. But sir, I would say you are definitely a person who changed the time and even a dirty pond into a picnic spot. So over to you, sir. Okay, so you are referring to the Hardoi project for which I got the National Water Award also and Water Innovation Award also. So these were two different awards that we got for this project. And it was done 2 years back before COVID. And at that time, I was district magistrate in the district called Hardoi. And this Belatali was a very stinky pond, almost in the middle of the city. Like it used to be on the outskirt of the city, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि cities आजकल expand कर रही हैं, तो जो चीजें outskirts पे होती थी वो लगभग अब city के अंदर आ गई हैं. तो ये उसी तरह का एक पॉन्ड था जो हरदोई सिटी के कभी आउटस्कर्ट पे हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से अंदर आ चुका था. एंड टेक्निकली वो एक रूरल एरिया था, बट अब क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया था तो उसके आसपास काफ़ी अर्बन साइंस लाइक शॉप्स, रोड्स, एवरीथिंग वाज देयर. बट लोगों के लिए वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उस पॉन्ड में वाटर हायसिंथ, जो जलकुंभी हम लोग बोलते हैं, वो पूरा भरा हुआ था उस पॉन्ड में. एंड उस पॉन्ड के बारे में ये भी कहा जाता था कि पुराने टाइम में वहाँ पे डेड बॉडीज फेंक दी जाती थी. उसके आसपास का जितना भी अर्बन एरिया था उसका सीवर भी वहीं आके गिरता था. तो वो एक ऐसा एरिया था जहाँ से लोग जब भी पास होते थे हटोई में तो उनको अपने नोज कवर करके, क्योंकि इतना फाउल स्मेल आ रहा होता था वहाँ से, उस तरह से निकलना पड़ता था. एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से वहाँ पे अंधेरा रहता था. थोड़े से अनवारंटेड एलिमेंट्स जैसे चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हो गए, वो सब भी वहाँ पे रहते थे. पुलिस प्रेजेंस भी नहीं हो पाती थी. इट वाज अ डार्क एरिया जिसको लोग अवॉइड करना चाहते थे कि गर्ल्स वहाँ से ना जाएं इवनिंग के टाइम पे. एंड तो जब मैंने उसको विजिट करा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिटी में आ गया था, सो देन वी प्लान कि लेट अस डू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेस. हम लोग इसको किस तरीके से बदल सकते हैं. So I took my entire team over there. My team of officers went with me, and I normally begin with 2 words, whether it is studies or any other project. Why not? So whenever people come up with problems or whenever they tell me something, I'm like, why not? Let's think about the solutions, not the problems. तो वो studies के time से एक attitude रहा है कि क्यों नहीं हो सकता. Let us think कि इसको कैसे करा जाए, what are the solutions, and then उन solutions का हम लोग किसी ना किसी तरह से जुगाड़ कर सकते हैं. तो पहला ये डिसीजन हुआ कि जितने भी ड्रेन्स उस प्रोजेक्ट बेलाताली में गिर रहे हैं उनको डाइवर्ट करा जाए. आई सेड ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस. लेट अस नॉट थिंक कि हमें 2 महीने में करना है. एक टाइम बाउंड, रियलिस्टिक टाइम बाउंड लेते हैं. रात भर में नहीं बदल सकता, लेकिन हम लोग उस पर लगे रहेंगे. 6 महीने का एक टाइम फ्रेम हमने डिसाइड करा कि 6 महीने में से फर्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग ड्रेन्स का डाइवर्जन करेंगे. तो बेलाताली में जितने ड्रेन्स गिर रहे थे हमने उनके लिए ऑल्टरनेट डाइवर्जन प्लान करा. जो वहाँ पे सीवेज सिस्टम था उसको स्टडी करके उसके फंड्स मैंने सैंक्शन करे. एंड द वर्क स्टार्टेड से विद इन 15 days. एंड नेक्स्ट 2 months में वी वर एबल टू डाइवर्ट द ड्रेन्स विच आर फॉलिंग इनटू इट. नेक्स्ट बिग टास्क वाज कि वो पूरा बेलाताली जलकुंभी से भरा हुआ था. उसमें कीचड़ था और उसमें उसको निकालना, इसको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी था. तो हम लोगों ने उसको क्लियर आउट करने के लिए मनरेगा स्कीम जो हमारी है उसका हेल्प लेने का सोचा. एंड अगेन इट वाज अ चैलेंज क्योंकि उस पॉन्ड के लिए कहा जाता था कि उसमें डेड बॉडीज हैं. इनफैक्ट जब हम लोग उस पर वर्क कर रहे थे तो कई स्कल्स भी वहाँ से निकले, कई स्केलेटन्स वहाँ से निकले. तो मजदूरों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि हम लोग इसको क्लीन कर सकते हैं. That is where your leadership comes into question. You have to go and talk to the people directly. तो उस गांव में जाके प्रधान जी को लेके और जिन मजदूरों को वहाँ काम करना था उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी था.
तो उनसे बात करी, उनको मोटिवेट करा, उनको ये दिखाया कि हाँ हम लोग एक्चुअली में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें हम लोगों ने दिन रात वहाँ पे मजदूरों को उतारा, कुछ गाड़ियां वहाँ पे लगाई जिससे सिल्ट जो निकल रही है उसको कैरी कर सकें। एंड देखते देखते अगले 1-1.5 महीने में हमने उस पूरे पॉन्ड को, जो वहाँ पे सिल्ट एंड जलकुंभी भरी हुई थी, उसको क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद हमने कुछ और चीजें वहाँ पे सोची, उसकी बाउंड्री वॉल डिजाइन करी। वहाँ पे लाइट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी जिससे वो अनसेफ था, तो लाइट्स लगाए। एक पाथवे बनाया जिसपे लोग वॉक कर सकें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे आ सकें। साइड में थोड़ा सा एक पैच ऑफ लैंड था, उसको हमने गार्डन के फॉर्म में डेवलप करा। स्विंग्स लगाए, बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस कॉर्नर बनाया। एंड इसको भरने के लिए एक व्यवस्था करी कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से इसको कंटिन्यूअसली पानी को रिप्लेनिश कर पाएंगे एवरी ईयर। तो उसके लिए पंप सिस्टम्स डिजाइन करें एंड बाकी रेन वाटर पे डिपेंड रहे। बोट्स प्रोक्योर करी जिससे वहाँ पे बोटिंग स्टार्ट करी जा सके। एंड फाइनली आफ्टर से अराउंड 6 months, बेलाताली was looking in a new shape. Good part was कि वहाँ पे उसके जो फॉलआउट्स थे वो बहुत थे। लोग प्रैक्टिस करने के लिए, जो यूथ था वहाँ का आसपास का, उन्होंने प्रैक्टिस करना वहाँ पे शुरू कर दिया, रनिंग करने आने लग गए। शाम को लोग पिकनिक करने के लिए बच्चों के साथ वहाँ बोटिंग करने आने लग गए। बच्चे झूला झूलते थे, स्विंग्स पे खेलते हुए आने लग गए। एक पार्क भी उनको वहाँ पे मिल गया। क्राइम वहाँ पे कम हो गया, तो क्राइम के हमारे स्टैटिस्टिक्स थे वो सडनली वहाँ पे ड्रॉप हो गए। आसपास में कुछ लोगों ने लॉजेस और होटल्स खोल लिए, जो आसपास के रेजिडेंशियल पार्ट्स थे, उन्होंने उसको लेक व्यू नाम दे के अपने जो बालकनीज थी उन पे ईटिंग अरेंजमेंट शुरू करा दिए। एंड कई लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जैसे वहाँ पे कई ठेले वाले, आप देखते हो कोई भी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करें तो ये लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे आके। आइसक्रीम वेंडर्स हो गए, चाट वेंडर्स हो गए, इन लोगों को वहाँ पे जगह मिल गई। हम लोगों ने एक उसका टिकटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि बोटिंग का अलग टिकट होगा एंड एंट्री का अलग टिकट होगा। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बार ये प्रोजेक्ट्स शुरू में तो चलते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट सस्टेन कैसे करेंगे। तो वो टिकटिंग सिस्टम, बहुत नॉमिनल टिकट रखा हमने, 10 रुपीज का एंट्री टिकट एंड 50 रुपीज बोटिंग टिकट। एंड वो अमाउंट पंचायत के फंड में जाता था और पंचायत को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इसी फंड से अब इसको मेंटेन करेंगे। तो वो राइटिंग में एक एग्रीमेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पंचायत के बीच में। एंड ये अमाउंट फंड में, जो अमाउंट इससे जनरेट होता था, ये पंचायत के खाते में जाने लगा। एंड so on and so forth. And now I have left Hardoi. It's been 1 year since I left Hardoi, but still I keep getting photos and videos of people who are still enjoying their time out there. So it's a very pleasing thing कि उस जगह को हम लोग बदल पाए इस तरीके से. So that was all how we brought Belatali happen. Moreover, sir, I would just love to read one message that has been dropped now only in the chat box by Astha Shivastav. She's saying that, sir, I'm from Hardoi and I can't thank you enough for turning a filthy place into peaceful beauty of nature. Sir, Thank this you, is Astha. how one Thank you, Astha, so much, and especially since you are from Hardoi, I would also like to request Astha कि आप वहाँ पे visit करो and अगर वहाँ पे कुछ problems अभी आ रही हैं, so do bring in to the notice of the present DM and the present authorities, क्योंकि हम सब की भी एक responsibility बनती है कि जो projects administration करे, बाद में it is all for the society, it is for the people that we do. तो हम लोग उसको own करें and बाद में अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ डैमेजेस आ रहे हैं, तो हम उसको प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लाएं। So after listening this, I just remember one thought, that is, impossible says I am possible, and a single step has turned many things, changed many things, rather employment, tourism, and many more others. So, sir, one more question from my side, that as per our today's theme, life after UPSC, sir, I would love to concentrate on your works for flute makers and saving their culture from fading. So you have been working for it, because in the world of modernity, we are just like, go for education, get a good job, get a foreign job. So, sir, you are the one who has been concentrated on the traditional work. And, sir, I would just love to know about your experience about it. So there are two different parts of your question. One is the paddy thing, which you asked, and other is the flute making. Both are related to my present district, Pilibhit.
And as I said, in our service, every district, every day has new challenges for you. So that is the most enjoyable part of our service. You plan a certain part of your day, and a lot of it goes in an unplanned way because new challenges come up which you don't think of. So similarly, when you go to a new district or new place of posting, that place again offers you new challenges. So Hardoi had different set of challenges for me. I was in Banaras. Banaras had different challenges. And when I joined this district, Pilibhit, around 1 year back, तो यहाँ पे एक अलग तरह की चुनौतियाँ थी. So it takes a month or two to understand the district. कि आपका नया डिस्ट्रिक्ट या नया असाइनमेंट में क्या चैलेंजेस हैं एंड आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं एंड आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है. सो व्हेन आई केम टू पीलीभीत, उससे पहले मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि पीलीभीत को बांसुरी नगरी कहते हैं. इट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्लूट्स. और ट्रेडिशनली वर्ल्ड ओवर यहाँ से फ्लूट सप्लाई होती थी. जितनी भी फ्लूट्स बनती थी इंडिया में, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, this has been a major hub. So it was a new thing for me when I learned this. And फिर मैं यहाँ पे जब आया तो मैं फ्लूट बनाने वालों से जाके मिला जाके, क्योंकि जब तक आप डायरेक्टली उन लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपको रियल प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगे. So this is a general approach which I do. आप अपने सिर्फ ऑफिसर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. आप सिर्फ ऑफिस में बैठ के अगर ऑफिसर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे आपको वो पिक्चर नहीं मिल पाएगी जो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके पा सकते हैं. तो फ्लूट मेकिंग में भी कुछ इसी तरह हुआ. मैंने डिसाइड करा कि जो लोग बनाते हैं मुझे उनके मोहल्ले में ले चलिए. सो आई वेंट टू देयर प्लेसेस. एक मोहल्ला है पीलीभीत में जहाँ पे काफ़ी फ्लूट मेकर्स कंसंट्रेटेड हैं. मैं उनके घर गया एंड उनसे परमिशन लेके कि मैं पूरा प्रोसेस जानना चाहता हूँ. दे आर वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पे आए हैं. एंड मैंने पूरा प्रोसेस देखा किस तरह से बैम्बू लेकर वो आते हैं. उनको रॉ मटेरियल बैम्बू का मिलता है एंड देन उसको किस तरह से अलग अलग साइजेस में वो लोग काट के फ्लूट बना के रेडी करते हैं. एंड देन आई आस्क्ड देम कि इस फ्लूट को बनाने के बाद आपका कोई डायरेक्ट मार्केटिंग का सोर्स है या आप इसको किसी मिडिल मैन को देते हैं, देन आपको किस तरह से इसका अमाउंट मिलता है. सो मुझे पता चला कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स फ्लूट मेकिंग को लेकर हैं. अब कहने को ये चीज़ ट्रेडिशनल लगेगी जैसे आपने कहा वैष्णवी, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें ये समझना जरूरी है कि जो चीज़ें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं हम उनको ओवरनाइट अप्रूव नहीं कर सकते. हम उनको इमीडिएटली हटा नहीं सकते एंड हमें उसी में मॉडर्निटी लानी है. तो मॉडर्निटी कैसे आएगी फ्लूट मेकिंग में? मॉडर्निटी इस तरह से आ सकती है कि हम उन्हें ई कॉमर्स से जोड़ें, हम मिडिल मैन हटाएं, हम उनको अमेजोन और जो अदर ई मार्केटिंग साइट्स हैं उससे जोड़ें जिससे उनको डायरेक्ट उनके प्रोडक्ट्स का राइट अमाउंट मिल सके. सो मेरा प्लान यही था और अभी भी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि जो फ्लूट मेकिंग फैमिलीज हैं वो अपने इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखें. मैंने खासकर उन फैमिलीज में अराउंड 50 फैमिलीज हैं जो अभी भी इससे जुड़ी हुई हैं. उसमें जो यंगस्टर्स थे जिनकी एज 22, 35, 40 तक थी, मैंने उनसे एक अलग से मीटिंग करी क्योंकि उनको कई बार समझा पाना, उनसे कनेक्ट हो पाना मेरे लिए बेटर था. तो मैंने उनको यही समझाने की कोशिश करी कि रॉ मटेरियल के लिए वी आर विद यू. रॉ मटेरियल मैं ये बताना चाहूँगा, फ्लूट का रॉ मटेरियल असम से आता है. असम में एक स्पेशल काइंड ऑफ बैम्बू होता है जिसको ये लोग वहाँ से यहाँ लाते थे. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि लेट अस ट्राई एंड ग्रो दैट बैम्बू वेराइटी ओवर हेयर इन पीलीभीत. तो हम लोगों ने असम में बात करी एंड वो पर्टिकुलर वैरायटी हम लोग अब यहाँ मंगा रहे हैं. वी आर एक्सपेरिमेंटिंग कि क्या वो वैरायटी यहाँ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी. सो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग. सेकेंड, जो इन लोगों का प्रॉब्लम था, फ्लूट मेकर्स का प्रॉब्लम था यहाँ पे कि उनको राइट अमाउंट कैसे मिलेगा. तो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट देम टू अ फ्यू बिग ब्रांड्स एंड फ्यू बिग परचेजर्स जो दिल्ली, बॉम्बे में हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं एंड ई कॉमर्स से इनको जोड़ रहे हैं सो दैट दे गेट द राइट अमाउंट in a modern way and continuing with their traditional thing. I'll come to the paddy wala thing. Again, it's related to Pilibhit. When I joined this district, I realized कि उत्तर प्रदेश में जो पैडी ग्रोथ होती है एंड पैडी प्रोक्योरमेंट होता है, ये प्रोक्योर होके फूड कॉर्पोरेशन को जाता है एंड देन फूड कॉर्पोरेशन से मिड डे मील और बाकी सब्सिडाइज जो राशन मिलता है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है.
उसका एक मेजर शेयर पीलीभीत से आता है। ये वो बेल्ट है जहाँ पे पैडी ग्रोइंग काफी अच्छी होती है। अगेन एज आई सेड, ग्राउंड पे जाके रियलिटी देखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वन डे आई डिसाइडेड ऑफ हैंड, जब ये सीजन लास्ट टाइम शुरू हुआ था, देयर इज अ पैडी प्रोक्योरमेंट सीजन जो अभी ऑलमोस्ट हमारा शुरू होने वाला है। इन नेक्स्ट 10 डेज ये सीजन फिर से शुरू होगा इस साल का। तो लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम ओनली, जब ये सीजन शुरू हुआ था, हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे किसान अपना धान लेकर आते हैं, पैडी लेकर आते हैं, और हम लोग एमएसपी पे उसको प्रोक्योर करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसको ऑफिस में बैठ के एनालाइज करेंगे तो आपको अच्छे फिगर्स दिखेंगे कि हमारा प्रोक्योरमेंट अच्छा चल रहा है, बट व्हेन यू डायरेक्टली गो टू द स्पॉट एंड दैट टू अनअनाउंस्ड, देन यू एट टाइम्स गेट टू सी द रियल पिक्चर। तो इसी तरह मेरा एक दिन जाना हुआ था, हमारी जो पीलीभीत की मंडी है वहां पे मैं गया था, और वहां पे जाके जब सीन देखा, कुछ किसानों से बात करी, डायरेक्टली बात करी, कुछ का पैडी धान वहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयज थे वो ले नहीं रहे थे उसको, बहाना बना रहे थे। बेसिकली जो हमारे किसान थे वो परेशान हो रहे थे कि वो पैडी जिस पे उनको एमएसपी मिल सकता है, वो एमएसपी मिलने की जगह फिर वो किसी और को जाके बेचते और कम रेट पे बेचते। तो अगर हमारा सिस्टम वहां पे मोर वेलकमिंग होता तो हम ज्यादा किसानों को एमएसपी दे सकते थे। लेकिन सैडली जो मैंने वहां पे देखा, हमारे कुछ ऑफिसर्स भी थे वहां पे जिनके अगेंस्ट एक्शन भी हुआ, फिर उनके इंटरेस्ट थोड़े अलग थे। तो जब इमीडिएटली मुझे वहां पे ये पता चला, और किसानों से जब आप बात करो तो डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके बाद किसी और रिपोर्ट्स की या किसी और इंक्वायरी की जरूरत नहीं रह जाती है। तो तब मुझे पता चला कि इस तरीके से वहां पे फ्यू ऑफिसर्स वर क्रिएटिंग न्यूसेंस एंड ट्रबलिंग द फार्मर्स जो अपना पूरा प्रोडक्ट लाए थे। इमीडिएटली वहां पे एक्शन हुआ, एंड नॉट ओनली दैट डे, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 3 मंथ्स का सीजन था उसमें हम लोगों ने रेगुलरली उसकी मॉनिटरिंग करी, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ एक ट्रेलर कह सकते हैं या आइडिया कह सकते हैं मुझे मिल गया था। आई वॉज मोर अवेयर टू इट कि अब इसको और अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मैंने और सेट ऑफ ऑफिसर्स को इंस्पेक्शन के लिए लगाया अलग अलग मंडीज में। वी हैव डिफरेंट मंडीज, एंड द बेस्ट पार्ट केम आफ्टर 6 months, कि आफ्टर 6 months जब हमारा पैडी प्रोक्योरमेंट सीजन खत्म हुआ एंड वी फाइनली हैड द फिगर्स कि कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हमने कितना इस बार प्रोक्योर करा है। सो दैट वाज द मोस्ट प्लीजिंग टाइम व्हेन वी रियलाइज्ड कि इस बार हम लोगों ने 22,000 मोर फार्मर्स को एमएसपी दिया in just the district of Pilibhit. So that is a very satisfying moment. You feel very happy at your heart that 22,000 more families compared to last year got the right amount which was their due. So as I said, जब आप काम कर रहे होते हो तब आप ये नहीं सोचते हो, आपका इंटेंशन क्लियर होता है, आपको पता है, लेकिन उसका कई बार बहुत ही प्लीजिंग एंड सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है। जैसे आप हरदोई का बता रहे हैं, अभी भी जब मुझे वहां पे बच्चों के खेलते हुए फोटोज आते हैं कि बच्चे अभी उस ग्राउंड में स्विंग्स पे खेल रहे हैं, या कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, फिजिकल एग्जाम्स की जो होते हैं आपके आर्मी के एंड ऑल, वो वहां पे रनिंग के लिए उसको यूज कर रहे हैं, क्राइम कम हो गया है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब एंड योर वर्क, यू नो, दैट सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट आउट ऑफ दैट. That's really great, sir, and it is really so satisfying to listen to the things like that. And after seeing that incident, especially of this grains mills and farmers one, it was really that you became inspiration for many of us, that we should have a courage to stand alone against the wrong. So sir, my next question is related to UPSC preparation. So at what time of our preparation we get to realize that we fully prepared for our first attempt? Because it is sometimes we are not unprepared, or we have prepared so much that we are preparing and then we get confused ourselves. So sir, how to deal with that? I don't think there is any time when you can say I'm prepared. I'm telling from my experience. So I appeared for UPSC thrice, 3 times, 2007 exam, 2009 exam and 10 exam. And
by God's blessings and my parents' blessings, I was able to clear it all 3 times. In my first attempt, I got revenue services. I joined the revenue services. Then in my next attempt, I got the police services. I joined the police services. And then in my third attempt, I joined the Indian Administrative Services. So I remember in all 3 attempts, and in all 3 attempts, there are different stages, as you know, the prelims, the mains, and the interviews. So a night before the prelims or the mains or the interviews, they were the same in all 3 attempts. For what I mean to say is कि उतना ही डर, उतनी ही चिंता, उतनी ही फीलिंग्स हर बार होती हैं. कभी ये स्टेज नहीं आता कि हाँ मुझे सब आ गया है, और मुझे लगता है वो आना भी नहीं चाहिए वो स्टेज. तो वो थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो जरूरी होती है. सो लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करना एंड एक थोड़ी सी नर्वसनेस और एंजाइटी होना कोई गलत बात नहीं है. एटलीस्ट मेरे साथ ये हमेशा हुआ है. एंड लास्ट मोमेंट तक भी मुझे ये नहीं रहता था कि मेरा आई एम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा कोर्स पूरा रिवाइज हो गया है. हाँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता था. मुझे लगता था कि हाँ मेहनत तो करी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से या पिछले कई टाइम से एक राइट डायरेक्शन में मेरी प्रिपरेशन चल रही है. जो मैंने मॉक्स दिए हैं या जो पेपर्स दिए हैं उनमें भी डिसेंट स्कोर्स आ रहे हैं. बट कभी वो स्टेज नहीं आती थी कि हम कह सके कि हाँ हमारी प्रिपरेशन अब परफेक्ट है एंड आई एम रेडी टू गो. वो एक थोड़ी सी नर्वसनेस, एक वो डाउट हमेशा रहता था, एंड आई थिंक वो रहना भी चाहिए. Yes, sir. So my next question is that how to combat with UPSC studies during this online era of studies, where it is very difficult to go to classrooms and set a normal routine. Moreover, when we have online sources and there are millions of sources. So how to tackle with it, and how to just maintain ourselves between colleges and UPSC studies? I think first of all, जो सभी लोग करते हैं, we should be very clear about the syllabus. Secondly, the past few years papers, say the past 5 years papers. I think ये 2 चीजें सभी लोग देखते हैं. इसके बाद इतना करने के बाद भी हम लोग कई बार डेविएट हो जाते हैं. तो मैंने अपनी स्टडीज के टाइम पे ये जरूर रखा कि बहुत ज़्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए. That is my one line advice. You should have a few selected sources for every topic, and rather than consulting number of sources, आप उन्हीं sources को बार बार पढ़ें. So revision is much more important from good books, from quality source, rather than running after multiple sources. क्योंकि in the end आपको पेपर में सिर्फ 3 घंटे में या 2 घंटे में एक लिमिटेड वर्ड्स में अपनी चीज को रखना है. तो अगर आपने किसी चीज पे पूरी रिसर्च कर ली है, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू राइट अ थीसिस ओवर देयर. यू हैव टू राइट अ जनरलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है उस सब्जेक्ट की. अगर वो आपको आ गया है और आपने बेस्ट सोर्सेस से उसको बार बार पढ़ा है, तो आपकी मेमोरी में एक बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग दैट आंसर आ चुका होता है. एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना वो बहुत जरूरी है. कई बार आपको पता भी है, आपको आता भी है, आपने कम सोर्स से बार बार पढ़ा भी है, बट आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उस टॉपिक को. तो ये जरूरी है कि हम लोग आंसर राइटिंग की एक हैबिट बना लें कि डेली जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, अपने बाकी काम करते हैं, मेरा एडवाइस यही होता है, मैं फॉलो भी यही करता था कि लेट अस कीप एन आवर फॉर आंसर राइटिंग इन द नाइट. क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत स्टडी मटेरियल होता है एंड हम लोग एक के बाद दूसरा पढ़ते ही जा रहे होते हैं. तो ये जरूरी है कि वी फिक्स अ टाइम कि नहीं, वट एवर टाइम सूट्स यू, से 9 to 10 और 10 to 11, वट एवर टाइम, सबका अलग अलग हो सकता है. बट वो टाइम आते ही हम लोग सिर्फ पेन पेपर लेके कुछ भी लिखेंगे. हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपने सब्जेक्ट का आंसर या जीएस का आंसर, जीएस में भी तमाम जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके आंसर, बट एटलीस्ट 1 hour वी विल डू आंसर राइटिंग. सो दैट इज द बेस्ट वे, एटलीस्ट व्हेन मेंस आर अप्रोचिंग. से आपके प्रीलिम्स जब हो जाएं तो उसके बाद तो ये एक हैबिट में आ जाना चाहिए कि हम आंसर राइटिंग करेंगे. सो व्हाट यू आस्क, कमिंग बैक टू दैट, डोंट रन आफ्टर नंबर ऑफ सोर्सेज. आप एक कोचिंग या जैसे ऑनलाइन में भी आपने कहा, आजकल बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं
एंड अगर आप गूगल पे जाएं, एक जनरल गूगल करें, तो आपके बहुत सारे लिंक्स मिल जाते हैं। आपका टाइम बहुत उसमें लग जाएगा, बट इन द एंड आपको लगेगा कि आपको कुछ क्वालिटी आपने उससे डिराइव नहीं करी। सो गो फॉर वन पोर्टल, बिलीव इन इट, ट्रस्ट इन इट। एक बार आप रिसर्च कर लीजिए, आप उसके प्रीवियस रिजल्ट्स देख लीजिए कि उस पोर्टल से कौन से टॉपर्स पिछले 3 साल में जुड़े रहे हैं। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया, देन डोंट चेंज इट। सेम फॉर योर बुक्स, सेम फॉर योर कोचिंग सेंटर। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पे भागते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के सेम टॉपिक के नोट्स ले आते हैं। मेरा एडवाइस यही रहेगा दैट वी शुड नॉट डू दिस थिंग। एक अच्छे कोचिंग सेंटर पे ट्रस्ट करिए, एंड उसको अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका ट्रस्ट 1 महीने 2 महीने के बाद आपको लगा कि नहीं यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो उसको इमीडिएटली देन चेंज कर दीजिए। बट ये ट्रस्ट कैसे करेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि पिछले 2-3 साल का रिजल्ट क्या रहा है उस कोचिंग सेंटर का। एंड अगर आप जानते हैं किसी को जिसने क्लियर करा है लास्ट 3 to 5 years में, तो आप उससे पूछ सकते हैं। बट वंस यू ट्रस्ट अ मटेरियल और अ कोचिंग सेंटर, देन यू डोंट चेंज इट। Sir, there is a myth that political pressure cause constraints in bureaucrats' commitments. Sir, how far it is true? So just we want to have an idea over it. No. So what you said has 2 parts to it. Political sir. pressure, yes, it is there, but it works on bureaucrats' commitment. I don't agree to that. It depends on how strong your commitment towards a purpose or towards what you've thought is. So if you have a strong commitment towards, say, any scheme, say any project of yours, तो वो कमिटमेंट चेंज नहीं हो सकता है। देयर आर वेज दैट यू डील विद पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर आता है, बट एज पार्ट ऑफ योर जॉब यू लर्न टू डील विद इट। यू लर्न कि आपने जो चीजें सोच रखी हैं, जो प्रायोरिटी की हैं, पर वो प्रायोरिटी की चीजें कौन सी हैं ये डिसाइड करना बहुत केयरफुली डिसाइड करना होता है, बिकॉज दे एक्चुअली हैव टू बी गुड फॉर द पीपल। अगर आपकी प्रायोरिटी की चीजें पब्लिक गुड की नहीं है, देन यू आर into a different kind of problem. But अगर आपका commitment towards public good है, एक public cause है, तो हर तरह का pressure फिर उसके सामने melt कर जाता है। Say Bela Tali, no one will oppose it. Why would anyone oppose such a good project? And all the politicians in Hardoi, everyone was supportive of it. Or many other projects which we have done and many good officers are doing in the field. Not only in my experience, but my other batchmates, my seniors, my juniors, so many good officers are doing their bit in their own way. But if it is for the public good, political pressure उसको break नहीं कर पाता, या political pressure के सामने वो melt नहीं होता आपका commitment. Political pressure कई और चीजों में रहता है, but as I said, once you are part of the service, you learn to deal with it also. Thank you, sir. So there is even one more question I want to ask you. So you chose for UPSC CSC. There is a saying that everything under the sun is covered in UPSC exam. So sir, my question is basically why you chose for CSC rather than for choosing FCAT, SSC or other exams? Okay. So this question will take me back to where this journey started. So when I was a small kid, I used to ask my mom questions like कि मॉम ये सड़क खराब है, इसे कौन ठीक करा सकता है, आज बिजली नहीं आ रही है, इसको कौन ठीक करा सकता है। सो माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि इफ यू ग्रो अप टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देन आप ये सब चीजें कर सकते हो। सो दैट इज वेयर दिस यूपीएससी का थिंग स्टार्टेड फॉर मी। माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दोज कन्वर्सेशंस जो मॉम के साथ मेरे होते थे कन्वर्सेशंस। एंड देन आफ्टर आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, I was working with a private firm in Delhi, and then I decided कि जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। 1-2 महीने मैंने ट्राई करा एंड मैंने चूज करा कि आई हैव टू टेक अ डिसीजन नाउ, क्योंकि अदरवाइज लेट हो जाएगा। मैंने इंजीनियरिंग ऑलरेडी कर रखी थी, जॉब ऑलरेडी था मेरे पास, एंड जनरली जैसा होता है आफ्टर इंजीनियरिंग नेक्स्ट स्टेप बोला जाता है कि अब आप MBA कर लो। तो मुझे ये सोचना था कि हाँ मेरी इंजीनियरिंग यानी मेरी ग्रेजुएशन हो गई है अब, एंड या फिर मैं MBA करता हूँ, एंड या फिर जो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है कि मुझे सिविल सर्विसेज NIS ऑफिसर बनना, मैं उसके लिए जाता हूँ।
So my family has been very supportive in this. I remember all of us sat, we discussed कि job के साथ नहीं हो पा रही है तैयारी. So let us take this risk. It was a calculated risk क्योंकि UPSC में risk हमेशा रहता है. But since I had my engineering done, तो एक calculated risk था कि ठीक है हम लोग सब छोड़ के अब तैयारी करेंगे. So then I left my job and I started preparing. I stayed for a few months in Mukherjee Nagar, where I did my basic coaching. And from there on, the journey started. My first attempt, and then, as I said, the second attempt and the third attempt. And क्यों करना है का बेसिक आंसर यही होता है जो शायद आप लोगों ने कई लोगों से सुना भी होगा, और इस ग्रुप में भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यही चीज मोटिवेट करती है और करना भी चाहिए कि we all can make a difference. You know, I strongly believe in it, and I strongly believe in what Mahatma Gandhi did and how he lived his life. You know, he's a big inspiration for all of us, and he's saying that be the change that you want to be, that you want to bring in the society. So it has to start from ourselves, and especially the youth. जब मैं schooling finish कर रहा था, and probably I was in my college, movie called Rang De Basanti released. So if people have seen that movie, so that movie also was very inspiring for me. Again, the message was the same, that अगर हम लोग बातें करते हैं कि कुछ change लाना है, and especially the youth of the country, so this gives you an excellent platform. These services give you an excellent platform, and उससे मेरा वो डिजायर और स्ट्रांग हो गया था. डिजायर तो शुरू से ही था, जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड ड्रीम था ये, एंड देन इट वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड कि नहीं, चेंज लाना है. सो आई विल गो फॉर दिस सर्विस एंड आई विल ट्राई एंड गिव माय बेस्ट फॉर द एग्जाम फर्स्ट. एंड देन एज आई सेड, आई वाज लकी, God's blessings, my parents' blessings, that I could improve on my rank. And I was in the revenue service and police service, and even then I was a little dissatisfied, because my journey or my dream or my aspiration lay in the administrative service, mainly because it gives you a bigger platform compared to the other services. This is what I believe. No service is superior or inferior. All services contribute. Even people in private sector contribute. If you are an engineer in a private sector, or say a data analyst, or say a teacher, or anyone, you know, any job, if you're doing it with sincerity, you are contributing definitely. But the question is, how big is your platform? आपका impact कितने लोगों तक पहुंच सकता है? एक वो point आता है which makes you go for the Indian administrative services, because it gives you the biggest platform. I'm not saying that other services are inferior or bad. No, even the private jobs are very good. If you are a sincere person, you are doing your job honestly, diligently, then even in the private sector, you are contributing to nation building. But with IAS, you get a bigger platform. You can touch multiple lives by a single step, by your single right directional thinking and actions. So that is the one thing which kept inspiring me, and it still inspires me, and I hope it keeps inspiring me till the end of my journey. Thank you, sir. It really means a lot. We have Amit sir with us. We welcome you, sir. And sir, Pulkit sir, as we are already running out of time, so I will just start up with word of thanks. I would like to thank Mr. Pulkit Khare sir for his golden words. We felt immensely pleasure to have you amongst us on this mega event of Ramjas UPSC wing. You took the eve to a greater level by your zealous words. I would just like to dedicate a few lines to you, sir. कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभले. हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे. Thank you, sir. Now I would just request everyone to switch on the cameras for a group photo. Is the group photo taken?
Yes, it is done. Okay, thank you, Ashish. Thank you, Vaishnavi. sir. Thank you, Meenakshi, and thank you, everyone. I'm seeing there are a lot of questions over here. If there is time, can I just answer a few of them? If you can see it, Vaishnavi, if you can just take them. 5 second answer to everyone, if possible. Okay, sir. So one is that when we start answer writing. Immediately after you are done with your prelims. From prelims to mains, every day, 1 hour. Next. So how to balance between college studies and UPSC? You'll have to make time for it, you know. And I think as you go closer to the UPSC, आपका proportion of time given to UPSC should increase. But अगर आपका subject वही college वाला subject आप UPSC में भी रख रहे हो, then there is nothing like it. That's the best way. तब आपका balance आसानी से हो जाता है. Next. So, sir, what is the role of our background place we belong in interview round? How to excel in it? No, there is nothing negative about the place you come from. इंटरव्यू हर तरह के लोग क्लियर कर सकते हैं, रूरल बैकग्राउंड वाले भी, अर्बन वाले भी, जिन्होंने जॉब करा है, नहीं करा है. ओनली थिंग इज आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको उस बैकग्राउंड के बारे में चीजें पता होनी चाहिए. एंड इंटरव्यू इज मोर अबाउट योर प्रेजेंटेशन. आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके बैकग्राउंड की वजह से कुछ नेगेटिव नहीं होता उसमें. नेक्स्ट. So can we take any online platform to prepare, or from self-study we can prepare and achieve UPSC? आई थिंक ले लेना बेटर होता है. ये मैं कोचिंग के लिए भी कहता हूँ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी, लेकिन सिर्फ एक लीजिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मत लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा. कोई एक प्लेटफॉर्म ले लीजिए जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है एंड उसको अच्छे से फिर फॉलो करिए. नेक्स्ट. So there is a question, can a student who is weak in maths can also become an IAS officer? यस ही कैन. थोड़ा सा आपको अपने क्वांट पे, मैथ्स पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली आप मैथ्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, आप किसी और सब्जेक्ट को रखेंगे. तो जो क्वांट वाला पोर्शन है उसके लिए लेके आप लोग हल्का सा उसके ऊपर ज्यादा वर्क करके बिल्कुल कर सकते हैं. So one last question is that what about choosing optional? Like we should have optional that we did in our graduation, or any other subject also is It fine. would be better if you take your graduation subject, especially अगर उसका स्कोरिंग बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट का है, पिछले कुछ सालों में स्कोरिंग अच्छी हो रही है, उसको ले लेना ऑलवेज एडवाइजेबल होता है. हाँ, जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड्स, जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स में सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट हो जाते हैं, तो जनरली हम लोग उसको फिर नहीं लेते हैं. बट अदरवाइज अगर कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है आपका, आई वुड एडवाइज कि आप ले सकते हैं. उसको लेना इज मोर इज बेटर इन अ वे. Thank you, sir. We are done with the questions. Thank you for Thank you, your Vaishnavi, and all the best to everyone who's connected. All the best for your fest also, which is ongoing, and thank you once again. Thank you, sir. Now I would just like to pass the podium to Simran. Over to you, Simran.